Hello everyone, today we will be solving 9618 Summer 24 Paper 4 2's question number 2. So this is a question about binary tree and it also involves object-oriented programming. So this is a question that generally students find difficult because binary tree is a difficult concept, but we'll go very smoothly and slowly when we're solving the question. And if you guys want, I can make a separate video on the concept of binary tree itself instead of just solving the question as well. So let's get started. The question says a binary tree stores data in ascending order. For example, this is an example of the binary tree. So we know that there is one root node, and then there are left nodes, and then there are right nodes, and then the tree moves like that. So in ascending order, it essentially starts from 3, and it's going to start from the leftmost node. It's going to go from 3, 8, and then it's going to cover the right node, and then it's going to go back to the original node. So it's going to be 3, 8, 10, and then we go back here, but we've already you passed this node, so we go up, and then it's 15 and 19. So that's how it is in ascending order. This is something that you study when you're doing traversals, and you'll be able to understand how we traverse through the tree, which is why it's in ascending order. Okay, so the question says a computer program stores integers in binary tree in ascending order. The program uses object-oriented programming. So the binary tree is stored as a 1D array of nodes. Each node contains a left pointer, a data value, and a right pointer. So usually in most of the questions, they usually give a 2D array which has 3 columns, and the first column is the left pointer, the second is the data, and the third is the right column. But over here, they've told us that we're using object-oriented programming, and we're going to be using nodes जिसके अंदर class attributes होंगे, a class होगी node, and उसके अंदर attributes होंगे left pointer, data, and right pointer. ठीक है, and उसको later on we're going to store it in a 1D array which is going to consist of those nodes. Okay, so it says that the class node stores the data about a node. So it has the 3 basic attributes, which is the left pointer, data, and the right pointer. The left pointer stores the index of the node that is to the left in the binary tree. So अगर for example आपका इस node से आप concern कर रहे हो, तो आपके left pointer में इसका index होगा, and आपके इसके right pointer में इसका index होगा जहाँ पे 10 पड़ा हुआ है. So the left and right pointer stores the index. ठीक है, it does not store the data. अगर आपका data 8 है और आप इस index पे हो, तो उसके लेफ्ट पॉइंटर पे 3 का इंडेक्स पड़ा होगा, 3 नहीं पड़ा होगा. ठीक है, और यहाँ पे राइट पॉइंटर पे भी जहाँ 10 पड़ा हुआ है उसका इंडेक्स पड़ा होगा, नॉट द डेटा 10 इटसेल्फ. ऑलराइट, इसके अलावा कंस्ट्रक्टर है एंड गेट एंड सेट पॉइंटर्स हैं. In the A part, it says write program code to declare the class node and its constructor. Do not declare the other methods and use appropriate constructor. Yeah. So the constructor just means that we're just writing this part. We are not writing the get and set methods. Now, sometimes they mention in the question that if the attributes are supposed to be private or not, but sometimes they do not. But if you're confused कि आपको नहीं समझ आ रही कि private रखने हैं मैंने या public रखने हैं, I do not know what to do. But a very easy solution for that is कि you go and check कि उन्होंने जो methods दिए हुए हैं class के, do they have get और set methods. Get और set methods होती ही इसलिए हैं ताकि आप private attribute को outside the class access कर सको. अगर उन्होंने get और set methods दिए हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपका attribute private होना चाहिए. अगर उन्होंने get और set methods वो क्यों देंगे अगर आपने public ही रखने थे अपने attribute. So that just gives it away कि obviously because they've given these things, so we're gonna make our attributes private. Okay, so let's just get started. क्लास का नाम था नोड्स. ठीक है, या नोड था. ठीक है, एंड वी आर गोना डिक्लेयर इट. तो डबल अंडरस्कोर इन इट, सेल्फ इनिशियलाइज कर दिया हमने. अच्छा, अब हमने देखना ये है कि उन्होंने कहा है कि इट इनिशियलाइजेस द डेटा टू इट्स पैरामीटर वैल्यू, एंड लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर को हमने खुद इनिशियलाइज करना है मैनुअली टू -1. तो जब हम पैरामीटर्स लिख रहे हैं तो उसके लिए तो ओनली पैरामीटर दैट वी नीड इज द डेटा. सो वी डू नॉट नीड टू write left and right pointers as parameters. ठीक है, अच्छा, तो first thing we're going to do is get self dot double underscore data. The double underscore part is what makes the attribute private. उसको हम initialize कर देंगे to the attribute value जो कि data है. Now we're going to write the left pointer which is -1 and self dot double underscore right pointer which is also -1. Alright, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया.
Moving on to the second part, it says that the get methods, get left, get right, and get data each return the relevant attribute. तो दिस इज एन इजी स्कोरिंग 3 मार्क्स. अभी तक आपके इजी मार्क्स ही जा रहे थे, ये भी 4 मार्क्स इजी थे, कंस्ट्रक्टर था, एंड अभी गेट मेथड्स का 3 मार्क्स का पार्ट आ गया. वी नो दैट गेट मेथड्स मीन दैट वी नीड द एट्रीब्यूट व्हिच इज जस्ट गोना बी अ रिटर्न स्टेटमेंट. तो वी आर गोना राइट def get data जो कि आपके मेथड के अंदर है, आपकी क्लास के अंदर का मेथड है. तो हम कर देंगे रिटर्न सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर डेटा. सेम फॉर द left and right pointers. Return self dot double underscore left pointer and right pointer. All right. Okay, these 3 marks were also easy. Now it says the set method, set left, set right, and set data each take a parameter and store this in the relevant attribute. तो बस हमने एक पैरामीटर वैल्यू लेनी है in all of these methods and we're just gonna assign that to the attribute. ठीक है, these are also easy scoring marks. तो technically आपने 3, 6 and 4 10 marks आपने आसानी से score कर सकते हो आप. तो अब हम करेंगे set data and we're gonna have a parameter value, इसको हम data कह देते हैं, और वो हम assign कर देंगे to our relevant attribute. ठीक है, हमने self dot underscore double underscore data को data assign कर दिया. अब हम करते हैं set left में हम पैरामीटर लेंगे, उसको हम लेफ्ट पॉइंटर में रख देंगे, एंड सेम गोज फॉर राइट. ठीक है. ओके, सो दिस वाज जस्ट द setting the basics of what our class is. ठीक है. Okay, now we are moving on to another class. It says the class tree class stores the data about the binary tree. ठीक है, पहले हम लोगों ने नोड स्टोर किए हैं, ईच एंड एवरी नोड, एक एक नोड जो होगा वो इस क्लास के अंदर, वी आर टॉकिंग अबाउट वन स्पेसिफिक नोड. अब हम बाइनरी ट्री पे आ रहे हैं. अब वो कह रहे हैं कि द क्लास ट्री क्लास स्टोर्स द डेटा अबाउट द बाइनरी ट्री. ठीक है, अब उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं. उसके अंदर ट्री है विच इज़ अ 1D array of 20 एलिमेंट. 0 से 19 तक इस 20. वी नो कि हर लैंग्वेज में आपका स्टार्टिंग इंडेक्स इज़ ऑलवेज 0, इट्स नॉट 1. तो 0 से 19 तक वी हैव 20 इंडेक्सेस, एंड इसकी टाइप क्या है? नोड. तो ईच एलिमेंट इज़ ऑफ टाइप नोड. ठीक है, और नोड के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के अंदर, लेफ्ट पॉइंटर, राइट पॉइंटर एंड डेटा. ठीक है, तो एन एरे ऑफ 20 एलिमेंट्स ऑफ टाइप नोड. ठीक है, फिर फर्स्ट नोड आ जाता है. इट स्टोर्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट नोड इन द ट्री, जो कि यूजुअली बुक में भी आप कहते हो रूट जो होती है आपकी बाइनरी ट्री की. ठीक है, थर्ड इज नंबर नोड विच स्टोर्स द क्वांटिटी ऑफ द नोड्स इन द ट्री, के अभी तक ट्री में कितने नोड्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरे 20 हो सकते हैं. ऑलराइट, फिर कंस्ट्रक्टर है एंड 2 अदर मेथड्स हैं. ओके, सो इट सेज द नोड्स कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम दिस ट्री. Okay, we'll see what we have to do about this sentence later on. Okay, so it says write program code to declare the class tree and its constructor. ठीक है, तो अभी हम इस क्लास से बाहर आ गए हैं, हम नई क्लास बना रहे हैं, उसका नाम है ट्री क्लास, आई थिंक. यस, ठीक है, अब हम ट्री क्लास पे आ गए हैं. हमने उसके अच्छा, अब इसके कंस्ट्रक्टर में क्या कह रहा है कि इट इनिशियलाइजेस फर्स्ट नोड टू -1, नंबर नोड्स टू 0, एंड इनिशियलाइजेस ईच एलिमेंट इन ट्री टू अ नोड ऑब्जेक्ट. ट्री हमारी अरे है, टू अ नोड ऑब्जेक्ट विद द वैल्यू डेटा वैल्यू ऑफ -1. ठीक है, तो नन ऑफ द थिंग्स जो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं स्ट्रक्चर में और पैरामीटर वैल्यूज, हर चीज़ को हमने खुद इनिशियलाइज करना है मैनुअली. अब हमारा जो ट्री में नोड ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनके नोड ऑब्जेक्ट जो है वो एक पैरामीटर ले रहा है, राइट, विच इज़ द डेटा, और हमने हर किसी का डेटा जो है -1 पे सेट कर देना है, और वो ऑटोमेटिकली उसका लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर वो खुद ही -1 सेट कर देगा. दैट इज़ नॉट अ पैरामीटर दैट वी नीड टू पास और फॉर द नोड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, df डबल अंडरस्कोर, ये यहाँ पे वी डू नॉट नीड एनी पैरामीटर. ठीक है, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर फर्स्ट नोड पहले हम कर लेते हैं, छोटी चीज़ें वी कैन गेट ऑन विद दैट. फर्स्ट नोड को उसने इनिशियलाइज किया -1 पे, बिकॉज हमारा इस -1 का मतलब हो जाएगा कि हमारी ट्री जो है वो अभी एम्प्टी है, बिकॉज द फर्स्ट इंडेक्स इज 0. एंड सेकेंड थिंग वाज द नंबर नोड्स, जो इससे हमें पता चलेगा कि कितने नोड्स हैं, उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो कि उन्होंने कहा है. ठीक है, एंड फिर हम लोगों ने ट्री को, जो हमारी एरे है, उसको इनिशियलाइज करना है. ठीक है, विच इज़ एन एरे
ऑफ टाइप नोड, ठीक है, जिसके पैरामीटर में हमने डेटा भेजना है विच इज़ गोना बी -1 फॉर अंडरस्कोर इन रेंज 20, ठीक है। तो हमने ये 20 एलिमेंट्स की अरे जो है डिक्लेयर कर दी है। आप इस तरह भी कर सकते हो, मैंने उसको एक ही लाइन में कर दिया। व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप एक एम्प्टी अरे पहले स्टार्ट में डिक्लेयर करो, फिर 20 एलिमेंट्स का लूप लगाओ एंड हर एलिमेंट के अंदर नोड सेंड कर दो विद द डेटा -1। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, बट दिस इज़ शॉर्टर एंड जस्ट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड विच इज़ ईजियर। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग द सेम थिंग, तो यू कैन डू वट आपके दिमाग में आपके लिए जो आसान होता है। ओके, मूविंग ऑन। अब क्वेश्चन एक्चुअली शुरू हुआ है विद दिस पार्ट। बाकी ऊपर वाले सारे मार्क्स बहुत आसान थे, 14 मार्क्स यू कुड स्कोर easily. Okay, so the question says the method insert node takes a node object वो लेगा new node as a parameter and inserts it into the array tree, ठीक है। insert node first checks if the tree is empty। हम empty tree कैसे चेक करेंगे? अगर हमारे जो first node वाला attribute था वो अगर -1 है, इसका मतलब है कि हमारी ट्री एम्प्टी है। अगर ट्री हमारी फिल होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी फर्स्ट नोड की वैल्यू क्या होगी? 0, विच इज़ द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द array. So it says if the tree is empty, it stores the new node in the array tree at the index number nodes. अब number node जो है वो हमें index भी provide कर रहा है along with the telling us the quantity of nodes that are in the tree. तो obviously number node का क्योंकि first value ही 0 है, हमारा first element जाना ही 0 पे है, तो it has a double function of also acting as the index जहाँ पे हमने अपना new node जो है वो store करना होगा। उसके बाद हम इंक्रीमेंट कर देंगे नंबर नोड्स को। सो एक तो पता चल जाएगा कि एक एलिमेंट है, दूसरी बात हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट नोड का इंडेक्स क्या है जिसमें हमने स्टोर करना है, एंड इट स्टोर 0 इन द फर्स्ट नोड, ठीक है, जो कि रूट है। इफ द ट्री इज नॉट एम्प्टी, इंसर्ट नोड क्या करेगा? इट स्टोर्स द न्यू नोड इन द array tree at the index number node, सेम थिंग। इट accesses the data in the array tree at the index first node and compares it to the data in the new node, ठीक है। हम लोग हमेशा कंपैरिजन जो है टू सेट आर लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स हमेशा रूट से स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमेशा कंपैरिजन इधर से स्टार्ट करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 ऐड करना है फॉर इंस्टेंस, ठीक है, तो मैंने 3 ऐड कर दिया नए इंडेक्स पे, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन अपना 15 से स्टार्ट करूँगी। दिस इज़ माई रूट नोड, ठीक है। मेरा कंपैरिजन हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। दिस इज़ माई रूट नोड। अब मैं देखूंगी कि मेरा जो नया डेटा ऐड किया है, इज़ इट लेस और इज़ इट ग्रेटर? जो 3 है दैट इज़ लेस, ठीक है। अगर जब मैं लेफ्ट पे आ जाती हूँ, अब 15 के लेफ्ट पॉइंटर पे ऑलरेडी 8 पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब मेरा नेक्स्ट कंपैरिजन इससे होगा। अगर यहाँ पे कुछ ना पड़ा होता तो मैं 3 को बस इधर रख देती, बट आई ऑलरेडी हैव समथिंग ओवर हियर। अब मेरा सेकंड कंपैरिजन इससे होगा कि ओके जो मैंने डेटा 3 ऐड करना है, इज़ इट लेस देन 8 और इज़ इट ग्रेटर देन 8? उसने लेफ्ट पे जाना है या राइट पे जाना है, ठीक है। अब वो पता चल जाएगा कि वो लेसर है, ऑब्वियसली इट गोज टू द लेफ्ट, एंड लेफ्ट पे कुछ भी नहीं था, हमने वहाँ पे 3 स्टोर कर दिया, तो अब हमारा ऐसे स्टोरेज हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट फ्रॉम द रूट एंड देन यू मेक योर वे डाउन टू पुट द नोड इन द करेक्ट एरिया, ताकि आप लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को उस तरह एडजस्ट करते हो, ठीक है। कहाँ थे हम? ओके, नाउ repeatedly follows the pointers until the correct position for the new node is found। जैसा मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया विजुअली, हम कोड वाइज भी कर लेंगे एंड इफ नीडेड हम लोग एक टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर हेल्प, ठीक है। once the position is found, insert node sets the left or right pointer of its parent node, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ऑब्वियसली अगर मैंने 3 इंसर्ट किया है यहाँ पे, जो मैंने 3 इंसर्ट किया था, तो जो 8 का लेफ्ट पॉइंटर है उसके अंदर इंडेक्स आएगा ना, जो जहाँ पे 3 पड़ा हुआ है, तो उसको मैंने अपडेट भी तो करना है। तो द पेरेंट नोड मीन्स के उससे ऊपर जो नोड था उसका मैंने लेफ्ट पॉइंटर या राइट पॉइंटर अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है ताकि इट फिट्स द इंडेक्स ऑफ द न्यू डेटा आई हैव एडेड। तो अब क्योंकि पहले तो 8 के लेफ्ट पॉइंटर में कुछ पड़ा ही नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने 3 ऐड कर दिया तो अब मैंने 3 का जो इंडेक्स था उसको 8 के लेफ्ट पॉइंटर में एडजस्ट करना है। सो आई ऑल्सो नीड टू कीप ट्रैक ऑफ द इंडेक्स ऑफ द पेरेंट नोड जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसके पॉइंटर्स को अपडेट भी करना है साथ साथ। दैट इज ऑल द मेन थिंग दैट वी आर डूइंग बेसिकली, राइट। तो हम लोगों ने एक तो इंडेक्स उसका अपने पास रखना है जो डेटा हम जिस डेटा को हमने अभी ऐड किया है, एंड सेकंड इंडेक्स दैट वी नीड इज ऑफ द प्रीवियस नोड जो पेरेंट नोड होता है, ठीक है। तो इट विल बी easier for you guys to understand once we start with the code and then it increments number nodes, ठीक है। Okay, so we can start with the code. All right, so
अच्छा, अब इंसर्ट नोड्स क्योंकि इस टेबल के अंदर है तो इट मीन्स कि वो क्लास का पार्ट है। उन्होंने कहा टेक्स नोड ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर, इंसर्ट्स इट इन द अरे, अपडेट्स द पॉइंटर फॉर इट्स पेरेंट नोड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने कर दिया, अच्छा, इंसर्ट नोड और इसका पैरामीटर है न्यू नोड। ठीक है, अच्छा, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोना डू इज़ के एम्प्टी से पहले हमने ये भी चेक करना है कि हमारी ट्री फुल तो नहीं है। दिस इज़ एन एडिशनल थिंग, आई डोंट नो इफ इट्स इन द मार्किंग थीम और नॉट, बट अगर ऑब्वियसली अगर आपकी ट्री फुल है तो फिर तो आप कुछ नहीं ऐड कर सकते ना, तो वो भी हम पहला हम चेक वो कर लेते हैं। इफ़ सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नंबर नोड इज इक्वल टू 20 विच मीन्स के 20 नोड्स ऑलरेडी हम लोगों ने लिखे उसके अंदर हैं, तो हम प्रिंट करा देते हैं कि द ट्री इज़ फुल। अच्छा, अब अगर वो नहीं है फुल तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि ट्री आपकी एम्प्टी है कि नहीं है, जो कि उन्होंने हमें कहा है। ठीक है, अब अगर नंबर नोड 0 है इसका मतलब है ट्री एम्प्टी है। ट्री एम्प्टी का मतलब है कि आप रूट ऐड कर रहे हो। ट्री एम्प्टी का मतलब है कि मैं 15 जो पहली चीज़ है वो मैं रूट में ऐड कर रही हूँ, और उसके लिए एडिशनल स्टेप क्या होगा कि मैंने जो फर्स्ट नोड की वैल्यू है उसको अपडेट करना होगा। अगर मैं बाकी एलिमेंट्स ऐड कर रही हूँ रूट के अलावा, इफ़ माई ट्री वॉज नॉट एम्प्टी इन द फर्स्ट प्लेस देन आई डू नॉट नीड टू टच द फर्स्ट नोड। ठीक है, इसमें अब मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले हाँ ठीक है, सबसे पहले मैं करूँगी सेल्फ डॉट, पहले मैं ट्री पे गई, उसके इंडेक्स हमें मिलेगा नंबर नोड से। ठीक है, स्टोर न्यू नोड इन रीड, ठीक है, नंबर नोड सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नंबर नोड से मुझे इंडेक्स मिल गया, उसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया न्यू नोड पूरा एज इट। ठीक है, उसमें लेफ्ट पॉइंटर भी है, राइट पॉइंटर भी है, डेटा भी है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मैंने नंबर नोड्स को इंक्रीमेंट करना है। जब मैंने एक दफ़ा उसके अंदर डेटा ऐड कर दिया है उस इंडेक्स पे, तो मैं उसको इंक्रीमेंट कर दूँगी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोना डू इज़ कि मैं फर्स्ट नोड की वैल्यू को क्या कर दूँगी 0। दिस इज़ ओनली द केस जब मेरा फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो रहा है। अब अगर दिस वाज नॉट माय फर्स्ट एलिमेंट तो अब मैंने डेटा ऐड करना है, देन आई एम गोना कंपेयर इट स्टार्टिंग फ्रॉम द रूट नोड एंड देन मूव माय वे एंड करेक्ट द पॉइंटर्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब उसके अंदर मैं कर देती हूँ, अब फॉर टू मेक इट ईजियर फॉर अस, हम लोग जो इंडेक्स है उसकी जो हमें नंबर नोड्स जो इंडेक्स की वैल्यू दे रहा है उसको हम स्टोर करा देते हैं इन ए वेरिएबल इंडेक्स, ताकि हमें बार बार ये पूरा लंबा ना लिखना पड़े, बिकॉज नंबर नोड इज गिविंग अस द इंडेक्स ऑफ द element where the new data is being added. Alright, अब हम क्या करेंगे कि हम लोग ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों ने डेटा ऐड करना है। अभी हमने डेटा ऐड नहीं किया, अब हम लोग न्यू नोड को यहाँ पे ऐड करें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एज आई सेड अर्लियर, जब हम लोगों ने अपना कंपैरिजन हमेशा स्टार्ट करना होता है रूट नोड से। हमारा कंपैरिजन हमेशा रूट से स्टार्ट होता है, तो अब हम लोग रूट की वैल्यू को, रूट के इंडेक्स को एक नए वेरिएबल बना देते हैं जिसको हम कह देते हैं करंट फॉर एग्जांपल। ठीक है, इसमें हमारी रूट की वैल्यू चली गई, जो फर्स्ट नोड था हमारा रूट इसमें चला गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है कि अब ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ऑब्वियसली वन बी कम डाउन। हम लोग इधर आते हैं, हम लोग इधर स्टार्ट किया, हमने कंपैरिजन स्टार्ट किया, हमने लेफ्ट पॉइंटर देखा, राइट पॉइंटर देखा, लेफ्ट पॉइंटर पे भी कुछ था, राइट पॉइंटर पे भी कुछ था, हम 3 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर का इंडेक्स आ गया। हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर का इंडेक्स आ गया, फिर हमने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं था, हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। फिर एट वन पॉइंट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ने डेटा ऐड करना होता 19, ठीक है, तो अगर हम ऐसे करते तो हम 15 से अगर स्टार्ट करते तो जब हम लोग राइट साइड पे जाते तो इसेंशली क्या पड़ा हुआ था यहाँ पे -1 राइट पॉइंटर में। इट वॉज नॉट एनी इंडेक्स बिकॉज इट वॉज नॉट पॉइंटिंग टू एनी थिंग। राइट पॉइंटर किस चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे क्या होता -1 अगर 19 ना होता। ठीक है, और फिर हम वहाँ पे 19 का इंडेक्स स्टोर कर देते। तो हमारा लूप इसेंशली तब तक चलेगा जब तक आइदर ऑफ द लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स आर नॉट -1। अगर वो -1 होगा, वो फ्री होगा, तो हम वहाँ पे इंडेक्स स्टोर करा सकते हैं ना।
ऑफ द न्यू एलिमेंट दैट वी आर एडिंग। अगर वो उसके अंदर किसी ऑलरेडी एलिमेंट का इंडेक्स पड़ा हुआ है तो हम उसको रिप्लेस तो नहीं कर सकते। वी हैव टू फर्स्ट चेक कि उसका लेफ्ट और राइट पॉइंटर एम्प्टी भी है कि नहीं है, एंड हाउ डू वी नो दैट, अगर वो -1 है। ठीक है, तो हमारा लूप बेसिकली होगा कि वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू -1। ओके, अब एज आई सेड अर्लियर, जब हम लोगों ने पॉइंटर्स अपडेट करने होते हैं तो वी हैव टू कीप ट्रैक कि हमारे प्रीवियस जो पेरेंट नोड है उसका इंडेक्स भी क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं 3 ऐड कर रही हूँ उसके लेफ्ट पॉइंटर में, तो मैंने इस पेरेंट नोड के लेफ्ट पॉइंटर में 3 का इंडेक्स रखना भी तो है ना। तो आई ऑब्वियसली नीड टू नो कि इसका इंडेक्स भी क्या है। आई थिंक वी शुड राइट अ टेबल जिससे हमें हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो दिस इज़ अ टेबल विच इज़ गोना हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, तो इंडेक्स हम कर देते हैं, ये हमारी एरे है, फॉर एग्जांपल 1D एरे है। ठीक है, अब हमारा डेटा यही है। ठीक है, हम लोग रखते हैं, हमारा पहला डेटा है फॉर एग्जांपल 15, फिर है 8, 19, 3 एंड देन 10। ओके, अब 15 के राइट पॉइंटर में पड़ा हुआ है 19, 15 के राइट पॉइंटर पे है 19 विच इज़ एट इंडेक्स 2। तो 15 का राइट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इंडेक्स 2 पे। 15 के लेफ्ट पे पड़ा हुआ है 8 जिसका इंडेक्स है 1, तो 15 के लेफ्ट पॉइंटर में क्या है 1। फिर हम आते हैं 8 पे, 8 के राइट पॉइंटर पे 10 है, राइट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 10 को, 8 का राइट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 10 को विच इज़ एट इंडेक्स 4, तो राइट पॉइंटर की क्या वैल्यू होगी 4। और 8 का लेफ्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 3 पे विच इज़ एट इंडेक्स 3, तो हमने यहाँ पे रख दिया 3 इंडेक्स। ठीक है, 19 के ना लेफ्ट पे कुछ है ना राइट पे कुछ है, तो दोनों हो गए -1। 3 के लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है, राइट पे भी कुछ नहीं है, तो ये भी 10 के भी लेफ्ट राइट पे कुछ भी नहीं है, तो वो हो गया -1। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर फॉर एग्जांपल मैंने 20 स्टोर कराना होता, ठीक है, तो वो 15 से भी बड़ा है और 19 से भी बड़ा है। ठीक है, तो अब 19 के राइट पॉइंटर -1 था, वहाँ पे कुछ नहीं था, तो वहाँ पे मैंने नया एलिमेंट स्टोर कराया ना, तो वी हैव टू चेक कि वो -1 है कि नहीं है। एंड मैंने अब मैं 20 स्टोर करूँगी, फॉर एग्जांपल नया एलिमेंट मैं डाल रही हूँ, मैंने 20 स्टोर करना है, मैं इंडेक्स 5 पे हूँ, मेरा डेटा है 20। ठीक है, अब मैंने इसका प्रीवियस नोड क्या था अकॉर्डिंग टू द ट्री 19। ठीक है, अब मैंने जब 20 ऐड करना है तो मैंने 19 का राइट पॉइंटर भी अपडेट करना है टू इंडेक्स 5 जहाँ पे 20 पड़ा हुआ है। तो व्हाट दिस मीन्स इज कि आई ऑल्सो नीड टू कीप ट्रैक कि जो मेरा प्रीवियस नोड है उसका इंडेक्स क्या है। ठीक है, विच इज़ वाई यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाएंगे प्रीवियस का, जिसके अंदर हम करंट नोड की फ़िलहाल वैल्यू रख देंगे, क्योंकि करंट तो बाद में अपडेट हो जाएगा इन दिस लूप, लेकिन प्रीवियस नोड की हमारे पास वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब हम करते हैं, अब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं कि हम जाते हैं कि जो हमने न्यू नोड ऐड किया है कि इफ़ न्यू नोड डॉट गेट डेटा की वैल्यू जो है दैट इज़ लेसर देन, आप ट्री पे जाओ, उसके करंट इंडेक्स पे जाओ और उसका गेट डेटा कर दो। ठीक है, इफ़ दैट इज़ लेसर तो आपने क्या करना है। अब इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टोर कर रही हूँ, मैंने स्टोर करना है 3, चलो कर देते हैं। ठीक है, अगर मैंने 3 स्टोर करना है, इसको हाईलाइट कर दें। ठीक है, इसमें मैंने 3 स्टोर करना है। अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँगी, 15, मेरे रूट पे क्या पड़ा हुआ था 15। अब मैंने देखना है कि अगर मेरा नया वाला डेटा जो है वो इससे इस डेटा से कम है, हाँ जी कम है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं 15 के लेफ़्ट पॉइंटर पे चली जाऊँगी। अब मेरा करंट नोड क्या था, अब मेरा करंट नोड चेंज हो जाएगा, मैं 15 के लेफ़्ट पे जाऊँगी, मैं देखूँगी 1 पड़ा हुआ है। अब मेरा करंट इंडेक्स क्या हो गया है 1, क्योंकि 3 जो है वो 15 से लेसर है। तो मैं क्या करूँगी, करंट में मैं रख दूँगी सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर ट्री के करंट के जाओ और उसका जो गेट लेफ़्ट पॉइंटर है उसकी वैल्यू स्टोर कर दो। ठीक है, और अगर और दूसरी बात मैंने ये करनी है कि मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ टर्न लेफ़्ट,
और उसको मैं सेट कर देती हूँ ट्रू। जिससे मुझे बाद इसका यूज़ मैं बाद में बताऊँगी क्या होगा। दिस इज़ गोना हेल्प अस ऐड द एलिमेंट लेटर ऑन, कि मैंने उसको जब मैं लूप से निकल जाऊँगी तो मैंने उसको लेफ्ट में ऐड करना है या राइट में। ठीक है, तो मैं टर्न लेफ्ट को मैंने ट्रू कर दिया because वी टर्न लेफ्ट। ठीक है, इफ़ दैट वाज नॉट द केस वी गोना टर्न राइट। अब अगर मैं 20 स्टोर करी थी, हम लोग दो एलिमेंट्स को लेकर चलते हैं कि या तो मैंने 3 स्टोर करना है या मैंने 20 स्टोर करना है। ठीक है, अब अगर मैं 20 स्टोर करी थी तो वो 15 से बड़ा था, तो अब मेरे करंट इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले मेरी 0 थी जो कि रूट था, अब मेरी क्या हो जाएगी 2। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, करंट के अंदर लिख देना है सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर ट्री के करंट पे जाओ, उसका गेट राइट को जो है वो स्टोर कर दो करंट के अंदर। ठीक है, मेरा करंट की वैल्यू चेंज हो गई है। अब देखो, आपकी जब आप लूप के अंदर आ रहे हो, आपकी इफ़ कंडीशंस मीट हो रही हैं, तो आपकी करंट की वैल्यू तो चेंज हो रही है, विच इज़ वाई हमने इनिशियली प्रीवियस को भी स्टोर सेव करना था। अच्छा, अब एक और चीज़ मैंने यहाँ पे क्या करनी है, टर्न लेफ्ट को मैंने क्या कर देना है फॉल्स। ठीक है, अब मैं आ जाऊँगी लूप से बाहर। अब ये 2-3 दफ़ा चलेगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द वो। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को 3 के लिए एक दफ़ा ड्राई रन करके दिखा देती हूँ। 3 के लिए हमने क्या किया, स्टार्ट हमारा हुआ 15 से, उसने देखा है 3 कम है, हमने लेफ्ट पॉइंटर हमारा करंट पॉइंटर हो गया। अब हम इंडेक्स 1 पे आ गए। अब हम हमारा करंट डेटा पड़ा हुआ है 8, 3 8 से कम है, यस इट्स लेसर, तो हमने हमारे करंट इंडेक्स पे आ गया 3। सॉरी, यहाँ पे अब अभी नहीं, क्योंकि 3 स्टोर ही नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे -1 होना था। उसने देखा है कि वो -1 है, तो उसने वहाँ पे जहाँ पे हमने 3 जो है वो 3 में स्टोर कर, समझो ये -1 है। ठीक है, अब यहाँ पे -1 है, उसने देखा है कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वो लूप से बाहर आ गया। अब वो लूप से बाहर आ गया, वो देखेगा कि वो जगह जो थी वो -1 था, वहाँ पे वो जहाँ पे हमने 3 स्टोर किया है उसका इंडेक्स यहाँ पे स्टोर कर देगा, जो कि 3 हो जाएगा। नाउ 8 इज़ पॉइंटिंग टू इंडेक्स नंबर 3, जहाँ पे हमारा नया वाला डेटा 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके लिए हम लोग लूप से जब बाहर आ जाएंगे, अब जब हमने स्टोर करना है उसको हम ऐसे करेंगे कि इफ़ टर्न लेफ्ट इज़ इक्वल टू ट्रू, तो हमने क्या कर दिया था, सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर ट्री के प्रीवियस पे जाओ और उसके लेफ्ट पॉइंटर को सेट कर दो with the index of the new data that we've added। अभी हमने ये किया है ना कि हम 8 के लेफ्ट पॉइंटर पे गए हैं, वो -1 था अगर हमने 3 अभी तक ऐड नहीं किया हुआ। जब वो -1 था, हम लोगों ने उसके सेट लेफ्ट किया, लेफ्ट पॉइंटर को हमने सेट कर दिया विद द इंडेक्स ऑफ वेयर 3 वाज इंसर्टेड इनटू द एरे, वो हमने सेट कर दिया। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है, और अगर ये केस नहीं था, हमने टर्न राइट करना था, तो हम लोग यही काम कर देंगे, सिर्फ हम लोग राइट पॉइंटर सेट करें, प्रीवियस पे जाओ, उसका सेट राइट करो और उसके अंदर इंडेक्स स्टोर कर दो, विच इज़ गोना बी द केस अगर हम 20 को करें। अब हम पूरा ड्राई रन करते हैं विद फॉर एग्जांपल 20। ठीक है, अब समझो हमने 20 अभी तक हम ऐड नहीं करे, यहाँ पे भी -1 था विच इज़ आवर ओरिजिनल ट्री। ठीक है, क्या किया हमने, 20 ऐड कर दिया 5 में, इंडेक्स नंबर 5 पे। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देयर वाज नॉट आवर फर्स्ट एलिमेंट, वी आर इन दिस पार्ट। ठीक है, हमने 20 ऐड करना था, 20 हमारा फर्स्ट एलिमेंट नहीं था, हम लोगों ने उसको उसका इंडेक्स जो है नंबर 5, उसको हमने स्टोर कर लिया इंडेक्स में। ठीक है, वो हमारा फ्री इंडेक्स था। फिर हम लोग गए सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ट्री के इंडेक्स पे, वहाँ पे हमने न्यू नोड स्टोर कर दिया, हमारा 20 आ गया यहाँ पे। अभी ये भी -1 है और ये भी -1 है, जब हमने न्यू नोड स्टोर किया इंडेक्स 5 पे। ठीक है, फिर हमने करंट के अंदर फर्स्ट नोड की वैल्यू डाल दी है, जो कि 0 होगी रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इट इज़। ठीक है, उसमें चला गया ये इंडेक्स 0 चला गया करंट में चला गया 0। अब उसने कहा है कि वाइल करंट इज़ नॉट इक्वल टू -1, प्रीवियस में रख दो करंट, प्रीवियस में हमने रख दिया करंट जिसकी वैल्यू थी 0। अब हम क्या करेंगे, इफ़ न्यू नोड डॉट गेट डेटा विच इज़ 20 इज़ लेस देन ट्री के करंट पे जाओ विच इज़ इंडेक्स 0, उसका डेटा इज़ 20 लेसर देन 15। नो, हम ये वाला पार्ट ही नहीं किया हमने, हम एल्स में आ गए। उसने कहा है कि इफ़ दैट वाज नॉट लेसर दैट वाज ग्रेटर, तो करंट की वैल्यू अपडेट कर दो विद करंट का राइट पॉइंटर।
अब करंट पे पड़ा हुआ है 15, उसके राइट पॉइंटर में वैल्यू है 2। अब मैंने करंट को अपडेट कर दिया 2 से, और मैंने टर्न लेफ्ट को क्या कर दिया है, लेफ्ट को मैंने कर दिया है फॉल्स। ठीक है, अब मैं इधर आ गई, मैंने दोबारा वाइल लूप कंडीशन चेक की, मेरा करंट -1 है, नहीं। अब मैंने दोबारा चेक किया, अब मैंने प्रीवियस के अंदर करंट की वैल्यू डाल दी। अब मेरा प्रीवियस नोड क्या है, 2। अब मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि मेरा जो 20 है, इज़ 20 लेसर देन the value that is at index 2. What is at index 2? It's 19. Is 20 lesser than 19? No, it's not. अब मैंने करंट के अंदर वैल्यू डाल दी 19 के राइट पॉइंटर की। 19 के राइट पॉइंटर पे क्या पड़ा हुआ है, -1, वो मैंने रख दिया करंट में। ठीक है, और मैंने टर्न लेफ्ट, मेरा पहली फॉल्स था, अगर वो ट्रू था इन एनी केस उसको मैंने फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब मैं वापस गई, मैंने लूप की कंडीशन चेक की, इज़ करंट लेस देन, इज़ करंट इक्वल टू -1? यस इट इज़। मैं लूप से बाहर आ गई, मैं लूप से बाहर आ गई, मैंने देखा इज माई टर्न लेफ्ट ट्रू, नो इट्स नॉट, इट्स नॉट ट्रू। तो मैंने सेल्फ डॉट ट्री पे गई, उसके प्रीवियस नोड पे गई, उसके प्रीवियस इंडेक्स पे गई विच वाज 2, उसके राइट पॉइंटर पे मैंने इंडेक्स रख दिया। इंडेक्स की क्या वैल्यू थी, उसको भी लिख देना चाहिए, इंडेक्स की क्या वैल्यू थी, इंडेक्स इज द वो वाला इंडेक्स जहाँ पे हमने नया डेटा ऐड किया। अब मैं प्रीवियस के राइट पॉइंटर पे गई, वहाँ पे मैंने रख दिया 5। नाउ 19 इज पॉइंटिंग टू इंडेक्स 5 जहाँ पे 20 पड़ा हुआ है। दिस इज हाउ योर लूप इज गोना वर्क। सो आई होप आई try to explain it as easily as I could and I hope it made sense. एंड यहाँ पे एक और चीज़ जो मिस हो गई है वो ये है कि मैंने यहाँ पे वो करना है, नंबर नोड्स को इंक्रीमेंट भी करना है। यहाँ पे सेल्फ डॉट नंबर नोड्स इज इक्वल टू +1। ठीक है, इसको मैंने कर दिया इंक्रीमेंट। ओके, एल्स के अंदर। ठीक है, बाहर भी कर सकते हैं, एल्स के बाहर ही है, सॉरी एल्स के बाहर। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। ऑलराइट, okay, so we are basically done with the most difficult part of this question. Now we're going to move on to the third part, which is output tree. It says the method output tree outputs the left pointer, the data, and the right pointer. अच्छा, for each node that has been inserted into the tree. ठीक है, तो for only the nodes जो insert हो गए हैं जिसकी quantity हमें पता चल जाएगी number nodes की value से। ठीक है, the outputs are in the order that they are saved in the array. ठीक है, if there are no nodes in the array, the procedure outputs no nodes. ठीक है, this is a simple question, we can just follow the instructions that they've given us. अब हम करते हैं output tree, there's no parameter. अब हम पहले चेक करेंगे कि ट्री एम्प्टी तो नहीं है। तो अगर नंबर नोड्स की वैल्यू क्या हुई, 0, इसका मतलब है हमारी ट्री एम्प्टी है। उन्होंने हमें कहा है प्रिंट कर दो नो नोड्स। ठीक है, और अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो हम लोग प्रिंट कर देते, एक वो लगा देते हैं लूप फॉर द नंबर ऑफ नोड्स दैट आर इन द ट्री, एंड हम लोग प्रिंट करा देते हैं, हम ट्री पे जाएंगे, उसके इंडेक्स x पे जाएंगे, उसका गेट लेफ़्ट करेंगे, पहले लेफ़्ट पॉइंटर प्रिंट किया, फिर स्पेस दी, फिर ट्री पे गए, इंडेक्स x पे गए, उसका डेटा प्रिंट कर दिया, फिर हमने स्पेस दे दी, फिर हम ट्री पे गए, इंडेक्स x पे गए, गेट राइट, और वो प्रिंट कर दिया। ठीक है, इस तरह हमने लेफ़्ट पॉइंटर भी प्रिंट कर दिया, डेटा कर दिया, राइट पॉइंटर कर दिया, और हमने ऑर्डर में ही किया है। ठीक है, moving on to C1, the main program declares an instance of tree class with the identifier the tree. Okay, अब हम आते हैं मेन प्रोग्राम पे, इसको हम अलग कर देते हैं with main program। हमने एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस बनाया ऑफ ट्री क्लास, बस ये करना था।
moving on. अब it says the main program inserts the following integers into the binary tree in the order given. उसने ही हमें डेटा बता दिया है, हम लोगों ने बाइनरी ट्री के अंदर ये वाले एलिमेंट्स ऐड करने हैं एंड देन द मेन प्रोग्राम कॉल्स द मेथड आउटपुट ट्री. अब हम लोगों ये इनपुट नहीं ले रहे, हम लोगों ने खुद मेन प्रोग्राम के अंदर करना है. दिस इज़ नॉट गोना हैपन वंस वी रन इट, दिस इज़ गोना हैपन इन द मेन प्रोग्राम. तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम गए द ट्री पे, उसके उसके हमने मेथड, अब हम लोगों ने इसके ना इंसर्ट करना है ना, इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग किस मेथड को कॉल करेंगे, इंसर्ट नोड को. इंसर्ट नोड में हमने क्या पैरामीटर भेजना होता है, न्यू नोड विच इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नोड, जो हमने सबसे ऊपर क्लास बनाई थी. नोड में हमने एक पैरामीटर भेजना होता है विच इज़ द डेटा, जो कि उन्होंने हमें दिया हुआ है. फर्स्ट डेटा इज़ 10. वी कैन ट्राई दिस अगेन. हम द ट्री पे गए, हमने उसके मेथड को कॉल किया इंसर्ट नोड. इंसर्ट नोड में हमने न्यू नोड भेजना है विच इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप नोड. ठीक है, न्यू नोड में हमने एक पैरामीटर भेजना है विच इज़ द डेटा, विच इज़ द नेक्स्ट डेटा इज़ 11. ठीक है, नाउ वी गोना डू इट फॉर ऑल द डेटा दैट देव गिवन अस. 11 के बाद है 5 1 20, 5 1 20, 7 50. ठीक है, 10 11 5 1 20 7 एंड 15. एंड में हमने क्या करना है, कॉल आउटपुट ट्री. हम द ट्री पे गए, हमने उसके आउटपुट ट्री को कॉल कर दिया. ठीक है, अब लास्ट पार्ट इज टेस्ट योर प्रोग्राम. अब हम इसको रन करेंगे एंड होपफुली आवर आउटपुट विल मैच विद द मार्किंग स्कीम. अच्छा, अब उसने हमें ये आउटपुट दिया है, दीज आर द लेफ्ट पॉइंटर्स, इट्स ओके इफ योर अलाइनमेंट इज ऑफ, दिस इज द डेटा and these are the right pointers. Now if you compare with the marking scheme, so the first line should be 2 10 1, फिर -11 -1 11 4, 3 5 5, -1 1 -1, 6 20 -1, -1 7 -1 and -1 15 -1. ठीक है, तो our output is correct. अगर आप लोगों को if you need a better understanding of the binary tree, तो आप इसको वो करके भी देख सकते हो कि इंडेक्स साथ प्रिंट करा दो बेशक, जिस तरह, ताकि ये वाली टेबल वाली उसके अंदर ले आओ एंड देन आप इस तरह ड्राई रन कर लो, जिस तरह मैंने पहले किया था कि 10 पॉइंट कर रहा है इंडेक्स टू पे 5 पड़ा हुआ है, उसके लेफ्ट पॉइंटर पे 5 है, इसके लेफ्ट पॉइंटर पे 3 इंडेक्स 3 पड़ा हुआ है जो कि 1 है, तो 10 से कम था, फिर 5 से कम 1 था, इस तरह करके स्टोर हुई है. तो इफ़ यू वांट टू ड्राई रन इट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, यू आर गुड टू गो. So I hope this video was helpful. If you guys want me to solve a specific question or make a video on this specific topic, I can do that. And yeah.